Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 3 डेमोक्रेसी एट वर्क लेसन 15 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students. Now we are going to cover up next topic, which is constitutional values and the preamble of the constitution. So let's start. Have you read the preamble to the Indian Constitution printed in the beginning of this material? As has been stated above, the constitutional values are reflected in the entire Constitution of India, but its preamble embodies the fundamental values and the philosophy on which the Constitution is based. The preamble to any constitution is a brief introductory statement that conveys the guiding principles of the document. The preamble to the Indian Constitution also does so. The values expressed in the preamble are expressed as objectives of the Constitution. These are sovereignty, socialism, secularism, democracy, republican character of Indian state, justice, liberty, equality, fraternity, human dignity, and the unity and integrity of the nation. Let us discuss these constitutional values. तो आप लोगों ने जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो हमारे संविधान के पहले पेज पे दिया रहता है, आपने उसके बारे में पढ़ा। ये एक ऐसा संवैधानिक मूल्य है जो पूरे संविधान का, जो भारतीय संविधान है उसके पूरे वैल्यूज को, उनके पूरे मूल्य को ये दर्शाता है। साथ में ये जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है, उसमें फंडामेंटल वैल्यूज है, फिर इसमें कई सारे ऐसे फिलॉसफी दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट के गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए होते हैं। ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है वो भी सेम चीज ही करता है। इसमें कई सारे ऐसे वैल्यूज दिए गए हैं प्रियम्बल्स में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे जो प्रियम्बल के कुछ वैल्यूज है वो कौन कौन से है? सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन character of Indian state, justice, liberty, equality, fraternity, human dignity and the unity and integrity of the nation. चलिए हम लोग इन constitutional values को एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। Sovereignty. You may have read the preamble. It declares India a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Being sovereign means having complete political freedom and being the supreme authority. It implies that India is internally all-powerful and externally free. It is free to determine for itself without any external interference either by any country or individual, and nobody is there within to challenge its authority. This feature of sovereignty gives us the dignity of existence as a nation in the international community. Though the Constitution does not specify where the sovereign authority lies, but the mention of "we the people of India" in the preamble clearly indicates that sovereignty rests with the people of India. This means that the constitutional authorities and organs of government derive their पावर ओनली फ्रॉम द पीपल। तो आप लोगों ने अगर संविधान का जो प्रस्तावना है वो पढ़ा होगा तो उसमें क्या लिखा रहता है कि भारत जो है वो एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि इसके पास कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम है एंड इसके खुद की अपनी सुप्रीम अथॉरिटी है। ये भारत को बोलता है कि ये इंटरनली पावरफुल है और एक्सटर्नली ये फ्री है। और ये क्या डिटरमाइन करता है इटसेल्फ कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना ही कोई इंडिविजुअल इंटरफेयर करेगा हमारे पॉलिटिकल पावर पे, और ना ही कोई कंट्री कर सकता है, ठीक है। और कोई भी इसके अथॉरिटी को चैलेंज भी नहीं करेगा। इसका जो फीचर है सॉवरेनिटी का, और ये क्या करता है ना कि किसी भी नेशन का ये एग्जिस्टेंस डिग्निफाई करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है कि इसका जो अथॉरिटी है इसमें ये क्लियर लिखा गया है कि हम लोग सब भारतीय लोग हैं और हमारा संविधान ये इंडिकेट करता है कि ये जो सॉवरेनिटी है मीन्स ये जो हमारा सुप्रीम पावर है वो इंडिया के पीपल के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेन्स है पावरफुल पावर जो है वो हमारे लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा। Socialism. You may be aware that social and economic inequalities have been inherent in the Indian traditional society, which is why socialism has been made a constitutional value aimed at promoting social change and transformation to end all forms of inequalities. Our constitution directs the governments and the people to ensure a planned and coordinated social development in all fields. It directs to prevent concentration of wealth and power in a few hands. The Constitution has specific provisions that deal with inequalities in the chapters on fundamental rights and directive principles of state policy. तो सोशलिज्म में क्या हुआ कि आप लोग सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से तो परिचित होंगे। ये हमारे भारतीय परंपरागत सोसाइटी में बहुत ही पहले से चलता आ रहा है। ये जो सोशलिज्म है वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि इसमें जो भी सोशल चेंजेस हैं उसको प्रमोट करने के लिए एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि जितने भी असमानता है वो सब हमारी सोसाइटी से खत्म हो। हमारा जो संविधान है हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों को ये इंश्योर कर रहा है कि हम लोग का जो सोशल डेवलपमेंट है हर एक क्षेत्र में कैसे होगा। तो हम लोग को से पहले प्लानिंग करना होगा, साथ में हम लोग को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा मीन्स सहयोग करना होगा। हमारा ये जो वेल्थ है या फिर पावर है ये कुछ ही हाथों में नहीं रहेगा मीन्स इससे रोकना है कि हमारा जो भी संपत्ति है या फिर हमारा जो भी पावर है वो कुछ ही के हाथों में रहे। ये चीज गलत है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने एक प्रोविजन बनाया है कि जितनी भी असमानताएं हैं वो सब खत्म हो और इस चीज के बारे में लोग फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में पढ़ेंगे इसे डिटेल से, ठीक है। Secularism. We all are pleased when anyone says that India is a home to almost all major religions in the world. In the context of this, plurality means more than one or two. Many. Secularism is seen as a great constitutional value. Secularism implies that our country is not guided by any one religion or any religious considerations. However, the Indian state is not against religions. It allows all its citizens to profess, preach, and practice any religion they follow. At the same time, it ensures that the state does not have any religion of its own. Constitution strictly prohibits any discrimination on the ground of religion. So, आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर हमारे इस वाले बुक में अगर कहीं पे भी स्टेट आता है तो स्टेट का मतलब ही यहाँ पे हम लोग कंट्री से ही लेकर बातें करेंगे मीन्स कंट्री को ही ये इंडिकेट करता है। सो सेक्युलरिज्म में क्या है कि हम लोग सभी खुश हो जाते हैं कि भारत जो है वो ऑलमोस्ट जितने भी मुख्य धर्म है पूरे विश्व में उनका घर भारत है, ठीक है। मीन्स भारत में आप देखोगे तो बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हो। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे एक या दो नहीं बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग हैं जो भारत में आपस में प्रेम से रहते हैं और ये एक हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक मूल्य है। ये जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे कंट्री को में सिर्फ एक रिलीजन या किसी ऐसा जो रिलीजन धर्म को मानने वाले उनको सिर्फ गाइड नहीं करता है, बल्कि जो हमारा इंडियन स्टेट मीन्स हमारा जो कंट्री है वो किसी भी धर्म के विरुद्ध में नहीं है और यह हमारे सभी जितने भी नागरिक हैं उनको ये पूरी तरह से अलाउ करता है कि उन्हें जो मन वो धर्म अपना उसको फॉलो कर सकते हैं, उस धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड उस धर्म को वो मान सकते हैं। एंड सेम टाइम्स ये भी बोलता है कि हमारा जो देश है उसका खुद का अपना कोई भी धर्म नहीं है, वो सब धर्म को बराबर मानता है। और हमारा जो संविधान है इसमें ये भी बोला गया है कि चाहे कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेसी, द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स democracy as a value, as a form of government. It derives its authority from the will of the people. The people elect the rulers of the country and
The elected representatives remain accountable to the people. The people of India elect them to be a part of the government at different levels by a system of universal adult franchise, popularly known as one man, one vote. Democracy contributes to stability, continuous progress in the society, and it secures peaceful political change. It allows dissent and encourages tolerance. And more importantly, it is based on the principles of rule of law, inalienable rights of citizens, independence of judiciary, free and fair elections, and freedom of the press. डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक है? तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो भी एक बहुत ही बड़ा उसका मूल्य है हमारे संविधान में। तो ये गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसमें जो लोग हैं वही एक उनका सुप्रीम अथॉरिटी होता है कि वो अपने गवर्नमेंट को चुने। जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रूलर को, अपने देश के रूलर को, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मीन्स जो चुने हुए लोग होते हैं वो अपने लोगों की सेवा करते हैं। ये जो लोग हैं भारत के वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे बाय द सिस्टम विच इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? जिसमें जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव के जो भी पीपल है इंडिया के वो वोट कर सकते हैं, ठीक है? उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उनका जेंडर कौन सा है, मीन्स उनका बैकग्राउंड कैसा है या फिर वो किस रिलीजन से आते हैं, इन सब से उनका कोई भी मतलब कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड इसे पॉपुलरली हम लोग वन मैन वन वोट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? डेमोक्रेसी है जो कि हमारे कंटिन्यूस प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, सोसाइटी का जो भी पीसफुल मीन्स शांति वातावरण है वो सब डेमोक्रेसी देखता है। और ये लोगों को इनकरेज करता है कि किस तरह से वो हमारे देश में कंट्रीब्यूशन कर सके। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेमोक्रेसी की वजह से ही हमारे जो रूल ऑफ लॉ है और जो प्रिंसिपल्स है वो सब डेमोक्रेसी ही तय करता है। और ये किसी भी सिटीजन के राइट्स को और जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को एंड प्लस जो फ्री और फेयर इलेक्शंस होना चाहिए वो भी डेमोक्रेसी तय करता है। और जो प्रेस होता है उसके भी फ्रीडम्स होते हैं, ठीक है? Republic. India is not only a democratic nation but it is also a republic. The most important symbol of being a republic is the office of the head of the state, that is the president, who is elected and who is not selected on the basis of heredity as is found in a system with monarchy. This value strengthens and substantiates democracy, where every citizen of India is equally eligible to be elected as the head of the state. Political equality is the chief message of this provision. तो भारत सिर्फ लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक गणतंत्र राष्ट्र भी है। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो चिन्ह है कि हमारा जो देश है वो गणतंत्र है। तो इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है मीन्स हमारे जो नेशन के जो हेड है प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है? उन्हें हेरिडिटी के हिसाब से नहीं चुना जाता। मीन्स जैसे कि मोनार्की में क्या होता था कि जो राजा का बेटा है वही वो अपने राज करेगा, तो यहाँ पे हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो मूल्य है वो जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको डेमोक्रेसी एक ऐसा चांस देता है कि वो सारे एलिजिबल होते हैं हेड ऑफ स्टेट में चुने जाने के लिए। और ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो हम लोग को एक चीफ मैसेज देता है इस प्रोविजन का, ठीक है? जस्टिस. At times, you may also realize that living in a democratic system alone does not ensure justice to citizens in all its totality. Even now, we find a number of cases where not only the social and economic justice but also the political justice is denied, which is why the constitution makers have included social, economic, and political justice as constitutional values. By doing so, they have stressed that the political freedom granted to Indian citizens has to be instrumental in the creation of a new social order based on socio-economic justice. Justice must be available to every citizen. This ideal of a just and egalitarian society remains as one of the foremost values of the Indian Constitution. तो आप लोगों ने समय के साथ ये महसूस भी किया होगा कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सिर्फ
जितने भी हमारे नागरिक हैं उनमें ये न्याय के प्रोविजन को भी मानता है। हमारे ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे होंगे सोशल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे या फिर पॉलिटिकल जस्टिस पे, जहाँ पे हम लोग देखा ना कि लोगों के साथ न्याय होता है, जस्टिस मिलता है सबको। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने क्या किया कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऐड किया, मीन्स इसे भी एक संवैधानिक मूल्य बनाया। और इसके वजह से जो पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है इंडियन सिटीजन्स को, सिर्फ इसी की वजह से मिला है। और यहाँ पे एक न्यू सोशल ऑर्डर तैयार हुआ है, मीन्स इनका क्रिएशन हुआ है, जिसपे जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स लोगों को मिलता है, सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी। मीन्स समाज में अगर उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो भी उनको, अगर वो चाहे तो उनको न्याय मिल सकता है, अगर उनको आर्थिक तरीके से न्याय चाहे तो वो भी लोगों को मिलता है। एंड ये जो न्याय है वो हर एक सिटीजन को मिलता है, भारत के सिटीजन को, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। एंड ये एक ऐसा आइडियल है, एक ऐसा चीज है जस्टिस, जिससे जो सोसाइटी है उसका ये सबसे अच्छा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा और अच्छा मूल्य है हमारे भारतीय संविधान का। लिबर्टी। The preamble prescribes liberty of thought, expression, belief, faith, and worship as one of the core values. This have to be assured to every member of all the communities. It has been done so because the ideals of democracy cannot be attained without the presence of certain minimal rights which are essential for a free and civilized existence of individuals. तो ये जो हमारा प्रियम्बल है, वो हमारा जो प्रस्तावना है, वो सब जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं उन्हें छूट देता है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, वो किस तरह से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, उनकी क्या मान्यताएं है, उनका जो विश्वास है, या फिर वो जिससे भी पूजा करना चाहते हैं उन्हें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये लिबर्टी है जो लोगों को इंश्योर करता है कि जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कम्युनिटीज के, वो सब उन्हें फ्रीडम मिली है कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से जो हमारा डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए आइडियल बन चुका है। साथ में अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो जितने भी मिनिमल राइट्स है या फिर फ्रीडम है, सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस है इंडिविजुअल्स का, वो होता ही नहीं। Equality. Equality is a significant constitutional value as any other. The Constitution ensures equality of status and opportunity to every citizen for the development of the best in him, her. As a human being, everybody has a dignified self, and to ensure its full enjoyment, inequality in any form present in our country and society has been prohibited. Equality reflected specifically in the preamble is therefore held as an important value. समानता जो है हमारे संविधान का एक सबसे बड़ा मूल्य उभर कर आया है। हमारा जो संविधान है वो क्या बताता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं भारत के, उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए ये जो समानता जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है। मानव के तरीके से अगर हम लोग देखें तो सबका खुद का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सबकी अपनी खुशियाँ होती है। अगर इसमें असमानताएं होती है हमारे देश में तो हमारा जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। इसलिए हमारा जो संविधान है ये इनइक्वालिटी को प्रोहिबिट कर दिया है। ठीक है, और ये जो समानता है ये हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये संवैधानिक मूल्य है। Fraternity. There is also a commitment made in the preamble to promote the value of fraternity, that stands for the spirit of common brotherhood among all the people of India. In the absence of fraternity, a plural society like India stands divided. Therefore, to give meaning to all the ideals like justice, liberty, and equality, the preamble lays great emphasis on fraternity. In fact, fraternity can be realized not only by abolishing untouchability amongst different sects of the community, but also by abolishing all communal or sectarian or even local discriminatory feelings which stand in the way of unity of India. तो ये जो भाईचारा है, फ्रैटर्निटी मीन्स क्या होता है? भाईचारा। तो एक ऐसा कमिटमेंट है जो हमारा जो संविधान है उसने प्रस्तावित किया है कि जितने भी लोग हैं हमारे देश के, वो सब आपस में भाई है। ठीक है, और भाईचारा की अनुपस्थिति में क्या होता है कि जो हमारा समाज है, भारतीय समाज, वो अभी बटा हुआ होता है। मीन्स यहाँ पे कई सारे धर्म है, कई जात हैं,
तो जो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं वो अभी तक बढ़ चुके होते हैं। और फ्रैटर्निटी की वजह से यहाँ पे सबको एक मीनिंग मिला है, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। और ये जो हमारा प्रियम्बल है वो भाईचारे पे भी जोर देता है। इनफैक्ट जो भाईचारा है उसे हम लोग कैसे देखेंगे कि लोग जो अनटचेबिलिटी में छुआछूत जो है वो अलग अलग सेक्ट्स में फैले हुए, डिफरेंट सेक्ट्स में है हमारी कम्युनिटी के। तो उसे लोगों ने अभी बंद किया है। मीन्स अभी छुआछूत को लोग उतना नहीं मानते। मीन्स कहीं कहीं तो लोग मानते हैं, लेकिन अभी ये सब बंद किया जा रहा है। और जो भी लोकल डिस्क्रिमिनेटरी फीलिंग्स है हमारे भारत में वो सब अभी हटाने के प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे हमारा जो भारत है वो यूनिटी के साथ रहे। Dignity of the individual. Promotion of fraternity is essential to realize the dignity of the individual. It is essential to secure the dignity of every individual, without which democracy cannot function. It ensures equal participation of every individual in all the processes of democratic governance. तो जो भी एक इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी के ऊपर बात करें तो इस भाईचारे के प्रमोशन के साथ ये भी हम लोग के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल का डिग्निटी को भी हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। ये हमारे लिए एसेंशियल है कि जितने भी लोग हैं उनकी डिग्निटी सिक्योर रहे। और डिग्निटी के बिना हमारा जो डेमोक्रेसी है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होता है ना कि लोगों को चांसेस मिलते हैं कि वो अपना इक्वल पार्टिसिपेशन कर सके, जितने भी इंडिविजुअल है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बनाने में इक्वल पार्टिसिपेट कर सके। Unity and integrity of the nation. As we have seen above, fraternity also promotes one of the critical values, that is unity and integrity of the nation. To maintain the independence of the country intact, and unity and integrity of the nation is very essential. Therefore, this stress has been given on fostering unity amongst all the inhabitants of the country. Our constitution expects from all the citizens of India to uphold and protect the unity and integrity of India as a matter of duty. तो हम लोगों ने जैसा ऊपर देखा कि जो हमारा भाईचारा, जो हमारा फ्रैटर्निटी है वो भी हमारे एक क्रिटिकल वैल्यूज है यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन के, उसको ये प्रमोट करता है। और हमारे देश के इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए जो यूनिटी और जो इंटीग्रेटेड है नेशन का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये जो यूनिटी है वो हमारे देश में होना चाहिए, मीन्स एकता होनी चाहिए। और हमारा जो संविधान है वो भारतीय नागरिक से यह उम्मीद करता है, ये एक्सपेक्टेशन करता है कि जितने भी लोग हैं वो अपने एकता को बचाए रखे एज देयर ड्यूटी, मीन्स ये अपने कर्तव्य के आधार पे। इंटरनेशनल पीस एंड अ जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर. The value of international peace and a just international order, though not included in the preamble, is reflected in other provisions of the Constitution. The Indian Constitution directs the state to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and treaty obligations, and encourage settlement of international disputes by arbitration. To uphold and observe these values in the interest of India, the peace and just international order will definitely contribute to the development of India. तो ये जो चीज़ है वो हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा गया है, बट इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन में रिफ्लेक्ट किया गया है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट के साथ क्या डायरेक्ट करता है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करे, फिर साथ में जो भी ऑनरेबल रिलेशन है अदर नेशन के साथ उसको ये मेंटेन करके रखता है, साथ में इसमें जो भी रिस्पेक्ट हो इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशन के साथ इसको ये मेंटेन करे। और जो भी सेटलमेंट है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स उसे आर्बिट्रेशन के द्वारा सेटलमेंट करे। जो भी हमारी वैल्यूज है इंडिया के उसे ये अपहोल्ड करके रख सके। साथ में जो पीस है इंटरनेशनल ऑर्डर है उसे हमारे डेवलपमेंट के लिए इसमें कंट्रीब्यूशन कर सके, हमारा इंटरनेशनल पीस एंड जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर। लास्ट वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स some duties to be performed by the citizen. It is true that these duties are not enforceable in the court of the law like the fundamental rights are, but these duties are to be performed by citizens. Fundamental duties have still greater importance because these reflect certain basic rules like patriotism,
nationalism, humanism, environmentalism, harmonious living, gender equality, scientific temper and inquiry, and individual and collective excellence. तो हमारा जो संविधान है वो कुछ ड्यूटीज को भी प्रेस्क्राइब करता है जो कि हर एक नागरिक के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये सही है कि ये जो ड्यूटीज है वो उसे इन्फोर्सेबल नहीं, मीन्स उसे कोर्ट के द्वारा लॉ में नहीं लाया गया, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट्स के जैसा। लेकिन ये जो ड्यूटीज है वो सारे सिटीजन्स को परफॉर्म करना है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हमारे संविधान में दिया गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे वैल्यूज है जैसे कि देशभक्ति, राष्ट्रवादिता, फिर मानवता के बारे में, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है, मीन्स किस प्रकार लोग आपस में प्रेम से रहेंगे और कैसे उनका जो जेंडर इक्वालिटी है वो होगा, फिर साइंटिफिक टेम्पर होगा, इंक्वायरी होगा, एंड जो इंडिविजुअल और जो कलेक्टिव एक्सीलेंस है वो रहने वाला है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग्स। Now, based on your understanding, try to solve in text questions 15.2. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का सारा इंग्लिश क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.